गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट। गना शॉट में आप सबको दोबारा स्वागत है। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे और वो है इंडिया जियोपॉलिटिकल मंडला। ये क्या है? इट इज ऑल अबाउट इंडिया एंड वेयर इंडिया इज पोजिशन्ड इन द ग्लोबल चार्ट्स एंड व्हाट इज इट्स फ्यूचर। राइट। सबसे पहले I would like to tell everyone that what I'm going to speak is something which I presented in the annual security conference of the Chennai Center for China Studies and the National Maritime Foundation. उनके एनुअल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में ये मैंने प्रेजेंटेशन दिया और and this is also part of the Indus India Research Foundation strategic yearbook where there's a proper research journal entry, right? In fact, this ये जो आज हम आपसे बात करने वाले हैं, this is the first and the opening article in the yearbook, and they felt that this is a great article, and that is why I took it upon myself to explain this. I thought everyone should understand where India stands geopolitically and what are the issues which we need to see. But इससे पहले कि मैं I get into the geopolitical mandala, I'd like to remind everyone we have started the China Challenge series. चाइना के बारे में हमने सीखना शुरू किया। 2 दिन पहले जनरल नरसिम्हन ने आके बात किया आपसे और आगे जाके हम ये पूरा सीरीज करने वाले हैं। और अगर आप नजदीक से देखोगे तो दिस सीरीज इज गोइंग टू हैव लॉट ऑफ heavyweights who have dealt with China across the LAC, across a table, and have been to China or anywhere, and they're going to talk about China, the China which is evolving in the new direction. और इस चाइना के साथ we have to deal. Ideally speaking, ये जो आज हम बातचीत करने वाले हैं, राइट, ये जो अबाउट इंडियाज सेंट्रलिटी एंड इंडियाज जियोपॉलिटिकल मंडला, आई शुड हैव started this, but unfortunately that day we had an electricity widespread failure in this area and I couldn't go through it, and I had to start the China series. But then let me put everything in perspective because understanding this is important. पिछले 1 साल 1.5 साल, इनफैक्ट जब when the COVID started waning, जब वो कोविड निकल रहा था, India's centrality in global affairs has started emerging. India is today one of the fastest, it is the fastest growing economy, and what people say is that by the end of this decade, we will be the 3rd largest economy after having overtaken Japan and Germany. And this is what जो जर्मनी और जापान के लोग बोलते हैं वो इसीलिए है। मैं फट से मैंने एक सवाल देखा बाय जवाहरलाल बंसल, व्हाई इज इंडिया केप्ट आउट ऑफ एनएससी फॉर द लास्ट 75 years, वो मैं आंसर करूंगा बाद में। जवाहरलाल, डोंट वरी, राइट? ओके, and I'll take all questions. I'll go question by question and comment by comment and handle everything because I'm going to do the show alone. Right. If you see, when you say centrality of India in global affairs, you have to understand why it is central, right? And that is what I'm going to show now. If you see, India is central to all the major populations in the world, whether they're in Africa, whether in Southeast Asia, China, and the Middle East. The second thing, and which is most important, India is central to all conflict zones today. All conflict is happening around India. Okay? And India itself is in some kind of a conflict zone. You are in the center of a nuclear triangle, which is supposed to be the most deadly in the world. एक और चीज, इंडिया के इर्द गिर्द जितने देश हैं वो अपने डिफेंस के ऊपर बहुत खर्चा कर रहे हैं,
India is central to big spenders and net defense importers. इसका मतलब ये है कि you have the opportunity to export and increase your defense diplomacy. अगर हम आउटरीच देते हैं डिफेंस के जरिए, जो हम कर रहे हैं ऑलरेडी, हमारा जब बोलबाला है इन द इंटरनेशनल अफेयर्स, इट विल गो अप. ओके, ये चीज जो है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है. इंडिया इज सेंट्रल टू मोस्ट डिजास्टर्स. अगर आप देखेंगे, मैंने पिछले 20 साल के डिजास्टर्स मैंने मैप किया इसके ऊपर, राइट. इंडिया के इर्द गिर्द काफी डिजास्टर्स होते हैं. और जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इंडिया के अंदर भी डिजास्टर्स होते हैं, पर हमारा जो क्षमता है इसमें काफी बढ़ गया है टू हैंडल डिजास्टर्स. इसीलिए जब भी कोई डिजास्टर हमारे इर्द गिर्द होता है, दे लुक टू इंडिया एज द फर्स्ट रेस्पॉन्डर. और हमने किसी को निराश नहीं किया आज तक, राइट. सो फार वी हैव हेल्प्ड एवरीवन, राइट. व्हाट आर आवर नेशनल इंटरेस्ट? हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट क्या है? अगर आप देखेंगे, our national interest is first and foremost protection of our land borders, coastline, island territories and sea lanes from external aggression. External aggression कहाँ से आता है? वो आता है या पाकिस्तान से हिस्टोरिकली, या अभी चाइना से. चाइना से 62 से तो है ही, अभी भी वो खतरा मंडरा रहा है हमारे ऊपर. एंड when you look at the sea lanes, our national interest was defined by our Prime Minister, Mr. Manmohan Singh, long back, when he said India's national interest extends from the Gulf of Eden to the Malacca Straits. हमें खतरा है to some extent from the sea also, but historically, जिस दिन से वास्को डा गामा यहाँ आए, किसी का हिम्मत ये नहीं हुआ कि इंडिया को attack करे from the coast. No attack from the coast has ever come on to India. But we have to protect our sea lanes of communication, and we also have to protect our island territories, which I have shown in red circles, basically Andaman Nicobar and Lakshadweep. Okay, what are the other national interests which we have to be cognizant of? The other national interest, which is of prime importance, is we have to internally protect people and the constitution against terrorism, insurgency and militancy. मैंने इधर हमारा संविधान को शामिल इसीलिए किया क्योंकि जितने ये टेररिस्ट हैं, जितने इंसर्जेंट हैं और जितने मिलिटेंट्स हैं, वो हमारा टेररिस्ट को उल्लंघन करते हैं. और हमारा दायित्व ये होता है कि हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बचा के रखें. लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कुछ साल पहले बहुत हाई में था, अभी थोड़ा कम हो गया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कल आ सकता है वापस. हो सकता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म सेंट्रल इंडिया में ना आए और कहीं भी आए, पर ऐसा खतरा आता रहेगा, इंटरनल प्रॉब्लम्स. ओके, हमारा नेशनल इंटरेस्ट ये भी है प्रोटेक्शन ऑफ पीपल इन आउट ऑफ एरिया कंटिजेंसीज एंड नेचुरल डिजास्टर्स. जब ये नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, चाहे भूकंप हो या फ्लड हो या कोई सुनामी हो या any kind of such natural disasters, we have to protect our people, our diaspora who are outside, and bring them back. We might have to bring them, even people, or protect our people who are in war-torn zones, like we did in Yemen. Yemen में we rescued everyone, or from disease-prone zones like Wuhan. अगर आपको याद है 3 साल पहले, और special planes went to Wuhan
and brought our people back from China. So these are all our national interests. So our geopolitical mandala revolves around these national interests. And our relationship with the world revolves around these national interests because these are prime. ये किसी किसी सूरत पे ये जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता और हमारा जियोपॉलिटिक्स जो है हमारा नेशनल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने में पूरा काम करना पड़ेगा हमारा पॉलिसी हमारा मिलिट्री हमारा डिप्लोमेसी हमारा इकोनॉमी हमारा नेशनल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के काम आते हैं ओके अब हम देखेंगे जियोपॉलिटिकल मंडला ये क्या है ये एक समझने की बात है कि हम हमारा जियोपॉलिटिकल इलाके को किस तरीके से हम बांटते हैं एट द कोर वो है इंटरनल इश्यूज और वो इंटरनल इश्यूज के बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा उसका नेक्स्ट दायरा आता है इमीडिएट नेबरहुड उसका अगला दायरा आता है नियर नेबरहुड और उसका अगला दायरा आता है इंटरमीडिएट नेबरहुड और लास्ट में इसके बाहर है हमारा जो स्ट्रेटेजिक नेबरहुड इन नेबरहुड्स में और ये मंडला बनाया जो चाणक्य का नीति के मुताबिक इसमें कौन से देश हैं और क्या प्रॉब्लम है क्या जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं हम अभी एक एक करके बताएंगे राइट हमारा जो इमीडिएट नेबरहुड है ये मेरा मानना है बहुत लोग और तरीके से भी बता सकते हैं हमारा इमीडिएट नेबरहुड में है पाकिस्तान चाइना और इंडियन ओशन रीजन और ये हमारे लिए हॉस्टाइल है इसमें हमें दिक्कत है और दिस इज द प्राइम ड्राइवर ऑफ आवर सिक्योरिटी जो भी हमारा सिक्योरिटी के लिहाज से ये तीन जगह यानी कि पाकिस्तान चाइना और इंडोनेशियन रीजन आज के दिन में इट ड्राइव्स आवर सिक्योरिटी स्टेचर व्हाट इज द स्टेटस इन दिस ऑल दीज थ्री प्लेसेस खास करके इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना दे आर एडवर्सरियल टू अस they are directly creating problem for us and our relationship with them हमारा जो relationship है चाइना और पाकिस्तान के साथ रोज बिगड़ते जा रहे हैं they are constantly challenging और threatening us खतरा है हमारे लिए इन दो देशों से हर वक्त कोल्यूसिविटी थ्रेट है यानी कि ये दोनों देश मिलके हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं और हमारे अगेंस्ट काम कर सकते हैं और ये एक इंटेंस न्यूक्लियर एनवायरनमेंट है ये माना जाता है कि दिस इज द पार्ट ऑफ अ वेरी डेंजरस न्यूक्लियर ट्रायंगल इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान राइट इसमें लॉन्ग टर्म प्रॉक्सी वॉर चलता है जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमारे साथ चलाया है और ग्रे जोन कॉन्टेस्टेशन भी होता है जिस तरीके से चाइना हमारे साथ कर रहा है और खास करके भूटान के जरिए और म्यांमार के जरिए और दूसरे देशों के जरिए और ये भी माना जाता है कि दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट विच इंडिया हैज टू हैंडल और हमारा सिक्योरिटी और हमारा जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से दिस इज द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल जिस तरीके से हम ये इलाके को हमारा जो इमीडिएट नेबरहुड को हैंडल करते हैं उस तरीके से हमारा शांति या आगे बढ़ाने का सिलसिला जारी रहेगा ओके नेक्स्ट है हमारा नियर नेबरहुड में कौन से देश आते हैं वो है अफगानिस्तान नेपाल भूटान बांग्लादेश म्यांमार श्रीलंका और मालदीव्स ये सारे देश अगर आप देखोगे तो अनस्टेबल रहते हैं कभी स्टेबिलिटी होता है कभी उलटफेर होता है कभी वायलेंस होता है कभी कुछ होता है जैसे अभी श्रीलंका में पूरा इनका इकोनॉमी टफ हो गया अफगानिस्तान तो आप हम सबको पता है पिछले 20 साल से अब अनस्टेबल है भूटान में भी थोड़ा अनस्टेबिलिटी नजर आ रहा है और चीन का दबाव उसमें ज्यादा है नेपाल में हर साल तख्ता बदली होता रहता है
अगर हम पूरा देखेंगे तो यही मैंने लिखा है, हमारा जो नियरहुड नेबरहुड इज इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक टर्मोइल। हर वक्त अर्थव्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था इनका बिगड़ा हुआ होता है। और हमारा जो संबंध है इट इज एपिसोडिक इन नेचर, यानी कभी गर्म कभी नरम, राइट। एक लय से नहीं चलता, कॉन्स्टेंटली हेडजिंग। इसका मतलब कि वो जो देश हैं वो हमारे साथ और चाइना के साथ खास करके हेड्ज करते हैं, कभी उधर झुकते हैं कभी इधर झुकते हैं, और हमारा जो बैलेंस में रखते हैं। और ये देश जो हैं इनके जरिए पाकिस्तान या चाइना इनडायरेक्ट और डेंजरस थ्रेट भी पोज कर सकता है। जैसे पाकिस्तान करता था थ्रू नेपाल आईएसआई के जरिए, या थ्रू बांग्लादेश आईएसआई के जरिए, या चाइना जो अभी कोशिश कर रहा है आइदर थ्रू म्यांमार और थ्रू भूटान हमारे यहाँ आने के लिए, और थ्रू नेपाल। इनफैक्ट क्यों नेपाल ही है, एक श्रीलंका में उनका हम्बनटोटा पोर्ट इज एब्सोल्युटली एन इनडायरेक्ट बट डेंजरस थ्रेट टू अस। और इन सारे देशों के साथ हमारा एथनिक ओवरफ्लो है, संबंध है, राइट। तेराई रीजन के लोग नेपाल से काफी मिले जुले होते हैं। हमारे जब बंगाली लोग हैं बांग्लादेश के लोगों से मिले जुले होते हैं, उनका उसी तरीके से एथनिसिटी सेम है। हमारा पूर्वोत्तर राज्यों में जो लोग और आबादी है और उनमें और म्यांमार में एथनिक ओवरफ्लो है, तो ये चलता रहेगा और ये हमारा जियोपॉलिटिक्स को डिक्टेट करेगा। हमारा चैलेंज क्या है? हमारा चैलेंज ये है कि ये जितने देश हैं हमारा दायरा में होना चाहिए, अंडर और इन्फ्लुएंस। अगर हम हमारा हिस्ट्री देखेंगे, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान तो हमारा ये है, पर कभी हमारे साथ नहीं रहा। पर ये देश कभी हमारे साथ रहते हैं, कभी हमारा अगेंस्ट रहते हैं। और हमारा चैलेंज यही है कि ये सब हमारा सिक्योरिटी स्फीयर में होना चाहिए। How to keep them in this our security sphere is the biggest challenge. That is why our neighborhood first policy assumes importance. अगर हम देखेंगे जो immediate neighborhood और near neighborhood, ये जितने देश हैं, राइट, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर if India has to emerge as a net security provider in this entire region, it will depend on these extended geographies. हमारा इमीडिएट और नियर नेबरहुड के ऊपर निर्भर है। और हमारा ये उद्देश्य है कि इस इलाके में हमारा फौज सबसे ताकतवर हो, और यहाँ अगर कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है तो वी शुड बी द रेस्पॉन्डर टू दिस सिक्योरिटी, फर्स्ट रेस्पॉन्डर एंड द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। ये नहीं हो सकता कि चाइना या यूएसए इस इलाके में आके नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। आज के दिन वैसे और कोई देश नहीं है which can come here and provide security. Not even China, not even USA. We are the net security providers in this area. But इसके ऊपर खतरा है क्योंकि China wants to make an entry into the Indian Ocean region. Our geopolitics will have to be repositioned accordingly. Right. हमारा इंटरमीडिएट नेबरहुड के बारे में कौन कौन से देश हैं? इंटरमीडिएट नेबरहुड के अंदर सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट के देश यानी वेस्ट एशिया और गल्फ कंट्रीज, अफ्रीका के काफी देश, साउथ कोरिया, जापान, एशियान के देश और ऑस्ट्रेलिया। ये सब मैं मानता हूं दीज आर ऑल पार्ट ऑफ आवर इंटरमीडिएट नेबरहुड। इसमें देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, राइट। इसमें अगर आप देखेंगे तो द एनवायरनमेंट इज कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव। कभी कॉम्पिटिटिव होता है पर कोऑपरेटिव भी होता है। इन देशों के साथ हमारा काफी कोऑपरेशन है, और पिछले 1-2 साल के अंदर ये कोऑपरेशन बढ़ रहा है, राइट। कभी कभी खराब हो जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ 2 साल पहले उतना ठीक नहीं था हमारा रिलेशनशिप, पर आजकल बहुत अच्छा है क्योंकि क्वाड के जरिए। एशियान एक जमाने में
तकरीबन हमारे से थोड़ा दूर रहता था, चाइना के साथ रहता था, पर आज के दिन वो भी, उनको भी पता चल रहा है कि चाइना जो है उनके ऊपर काफी दबाव डाल रहा है, और वो भी इंडिया की तरफ झुक रहे हैं, वो बैलेंस कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, राइट। और इन देशों के साथ हमारा काफी कल्चरल और एथनिक रिलेशनशिप है, हिस्टोरिकल रिलेशनशिप। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, बहरेन। बहरेन में 1964 या 70 तक, उस दशक 60 टू 70 तक हमारा पोस्टेज स्टैंप इस्तेमाल होते थे, और हमारा जो रुपी का वहां बोलबाला होता था और नॉर्मल करेंसी था। अभी भी आप जाइए, बहुत इन देशों में हमारा रुपया चलता है, राइट। चल जाता है, ये नहीं कि वो उतना फ्रीली इस्तेमाल कर सकते, पर चल जाता है। ओके, इन देशों के साथ हमारा एनर्जी और ट्रेड लिंक्स हैं। तेल, राइट, तेल हम वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट से लेते हैं, काफी सेंट्रल एशिया से भी हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। ट्रेड लिंक्स ज्यादा हमारे पास जापान के साथ, एशियान के साथ और साउथ कोरिया के साथ काफी है, और अफ्रीका के साथ भी, पारंपरिक, हिस्टोरिकल। हमारा इनके इन देशों के साथ खास करके हमारा जो रिलेशनशिप है, इट हैज बीन लार्जली स्टेबल। कोई झगड़ा नहीं है इनके साथ हमारा। वही बात है, आपका दुश्मन का दुश्मन या दुश्मन के आगे वाला हमारा दोस्त बन जाता है। इसीलिए अगर आप देखोगे तो ये जो इंटरमीडिएट नेबरहुड में हमारा अच्छे रिलेशंस हैं, और इनके साथ रिलेशंस कायम रखना जरूरी है, क्योंकि चाइना के को हम बैलेंस कर सकते हैं, और चाइना के साथ हम compete कर सकते हैं। और उसमें जैसे मैंने बोला, उनका भी रिक्वायरमेंट ये है, इन देशों का भी, कि वो हमारे साथ बना रहे, ताकि वो चाइना को बैलेंस कर सकते हैं। नहीं तो वो चाइना के दबाव में डूब जाएंगे। आप आजकल देख रहे हो कि चाइना का जो इनरोड्स हैं वो मिडिल ईस्ट में ज्यादा हो रहा है। वो ईरान इराक का पैक्ट कर दिया, और ईरान और सऊदी का पैक्ट कर दिया, और वहां उनके गतिविधियां बढ़ रही हैं। पर एट द सेम टाइम दोनों, ईरान और सऊदी अरेबिया, इंडिया के साथ रिलेशनशिप बढ़ा रहे हैं। वो एक खबर चाइना को दे रहे हैं कि भाई, आप ही नहीं हो, बाकी भी हैं। सो ऑल यू दीज आर ऑल हेड्ज नेशंस, हेजिंग, राइट, कि सेफ्टी के लिए, और वो भी हमारे साथ अच्छे रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। इसके बाद हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स हैं, वो क्रिटिकल है हमारे लिए। और कौन कौन से देश हैं जो इसके, कुछ देश जो इसके साथ हमारा स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, वो उसमें है यूएसए, रशिया, ईयू के नेशंस, फ्रांस। फ्रांस के साथ बहुत हमारा गहरा संबंध है, स्ट्रेटेजिक। इसराइल, जिस, राइट, और क्वाड नेशंस, इनके साथ हमारा स्ट्रेटेजिक संबंध है। और ये जो स्ट्रेटेजिक संबंध है, वो इट इज अ मैटर ऑफ इंटरडिपेंडेंसी। कुछ चीजों के ऊपर हम उनके ऊपर निर्भर हैं, कुछ चीजों के ऊपर वो हमारे ऊपर निर्भर है। आपको आश्चर्य होगा अगर मैं बताऊं, यूएसए हमारे ऊपर काफी निर्भर है, और ये निर्भरता बढ़ता जा रहा है। सिर्फ ये नहीं कि हम उनके ऊपर निर्भर हैं, कुछ सेक्टर्स में वो निर्भर है हमारे ऊपर, कुछ सेक्टर्स में हम निर्भर हैं उनके ऊपर, और ये सारे देशों के साथ, राइट। इनमें जो पॉलिटिकल और हिस्टोरिक लिंकेजेस बहुत दिन से हैं, ये नया कोई रिलेशनशिप नहीं है, पुराना रिलेशनशिप है हमारा। सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स में ये जितने स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं, ये क्रिटिकल हैं। और खास करके ये जो रिलेशनशिप, ये जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप दूर दराज इलाकों, देशों के साथ, और ये ग्लोबल पावर्स के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है, वो कोऑपरेटिव काफी हद तक है, और कभी कभी कॉम्पिटिटिव हो जाता है। पर इसमें क्या है कि प्रॉब्लम यह है कि चेंजिंग पावर इक्वेशंस और यूक्रेन वॉर, ये दोनों का असर इन रिलेशनशिप के ऊपर है। जैसे हमारा स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप यूएसए के साथ है और रशिया के साथ भी है, पर रशिया का रिलेशनशिप यूएसए के विरुद्ध है, पर चाइना के साथ है।
और हमारा रिलेशनशिप चाइना का विरुद्ध है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। और ये कॉम्प्लिकेशन जिस तरीके से हम संभाल सकते हैं, उसके ऊपर हमारा सक्सेस आगे डिपेंडेंट है। जैसे मैंने वहां लिखा, रशिया चाइना रिलेशनशिप जो है हमारे लिए काफी एक बड़ा चैलेंज है। ओके, राइट। नेक्स्ट चीज है, कुछ इंटरनल इश्यूज हैं जो, अगर आप वो दायरा देखोगे, ये इंटरनल इश्यूज अगर आप देखोगे सेंट्रल, राइट, वी आई विल नाउ फोकस ऑन दैट फॉर सम टाइम, राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर हमारा इंटरनल स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है तो वी विल हैव प्रॉब्लम्स। इंटरनल इश्यूज में वी शुड बी क्लियर, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और इसको कोई रोक नहीं सकता। चाहे चाइना कितना बाधा डाले या पाकिस्तान कितना भी बाधा डाले, वी विल रिमेन द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी फॉर क्वाइट सम टाइम। पर हम एनर्जी डेफिशिएंट हैं, हमारे पास एनर्जी नहीं है, तेल नहीं है, हमें पूरा इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज हमारे ऊपर असर पड़ेगा, हमारा पानी के ऊपर असर पड़ेगा, हमारा तटवर्ती इलाकों के ऊपर असर पड़ेगा। आप वी मस्ट एक्सपेक्ट मोर फ्लड्स, वी मस्ट एक्सपेक्ट मोर साइक्लोन्स एंड सुनामीज, राइट। और हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है, इट इज डिजास्टर प्रोन। कभी मडस्लाइड हो जाता है, कभी भूकंप हो जाता है, कभी आंधी आ जाता है, कभी तूफान आ जाता है। तो इसके ऊपर हमें काफी जोर देना पड़ेगा। पर इसमें खास बात यह है, अगर हम इन चीजों के ऊपर इंटरनली जोर देंगे, ये एक्सटर्नली हमें काम आएंगे। क्योंकि और इलाके में अगर कोई डिजास्टर हो तो हमारे पास वो शक्ति होगा जिससे जाके हम दूसरों को बचा सकते हैं, राइट। इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, हमारा प्रॉब्लम है कि हम वी आर स्ट्रेटेजिकली डिपेंडेंट ऑन अदर्स। ये स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी क्या होता है? स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी ये इसीलिए आया है हमारे ऊपर क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजी वीक है। और मैं एक कमेंट भी देख रहा हूँ जवाहरलाल बंसल जी का कि वी लैक द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इसीलिए हम स्ट्रेटेजिकली डिपेंडेंट हैं। हिस्टोरिकली हमने अपना R&D के ऊपर पैसा नहीं खर्च नहीं किया और इसी की वजह से वी आर टेक्नोलॉजी डेफिशिएंट एंड स्ट्रेटेजिकली डिपेंडेंट। और अगर हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए तो आत्मनिर्भरता बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। और जो आत्मनिर्भरता के अंदर जो प्रोग्राम्स हैं उसका परिणाम होना चाहिए, और वो परिणाम तभी होगा जब हम R&D के ऊपर पैसा लगाएंगे, टेक्नोलॉजी के R&D के ऊपर, राइट। हमारा दूसरा प्रॉब्लम यह है, हमारा राजनीति जो है ना, बहुत बिगड़ा हुआ राजनीति है। सब वोट बैंक के लिए घूम देखते हैं, देश के हित में काम बहुत ही कम करते हैं, राइट। और वो अपना वोट किस तरीके से पाना है, वो वोट पाने के लिए क्या क्या करना है, हमें सब पता है। मैं इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं है, पर इट इज ऑल पार्टिसन पॉलिटिक्स। हमारा स्ट्रेटेजिक कल्चर भी नहीं है। हमारे जितने राजनीतिक लीडर्स हैं, हमारे मंत्री हैं, हमारे स्टेट लेवल के जो चीफ मिनिस्टर्स और मंत्री वगैरह हैं, काफी लोग, उनका ये स्ट्रेटेजिक कल्चर नहीं है कि भाई देश के लिए क्या करना है। कई जगह तो कोई मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर तो चाइना के हित में काम कर रहे हैं, चाइना के हित में वो ट्वीट भी करते हैं, राइट। हमारा स्ट्रेटेजिक कल्चर वीक है। हमें झेलना पड़ रहा है आज भी प्रॉक्सी वॉर JNK में। हाल ही में आपको पता है वहाँ हमारा जो आर्मी गाड़ी के ऊपर जो अटैक हुआ है, ये जारी रहेगा, ये कभी कम नहीं होगा मेरे हिसाब से। ये कुछ न कुछ होता रहेगा और मेरे ख्याल में इट विल टेक अनदर जनरेशन फॉर थिंग्स टू चेंज। हो सकता है इट विल टेक 2 जनरेशंस। हमारा एथनिक और रिलीजियस फ्रैक्चर्स बहुत हैं, राइट। भाषा के ऊपर फ्रैक्चर है, हमारा मजहब के ऊपर फ्रैक्चर है, हमारा कास्ट क्रीड के ऊपर फ्रैक्चर है, बहुत डिवाइड्स हैं हमारे अंदर। अगर हम इनके उससे उबर के नहीं आ सकते तो हमें घाटा है। और हमारे पास वी डोंट हैव अ डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस, जो आजकल हम ट्राई कर रहे हैं कि डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस बनाने के लिए टू मेक आवरसेल्फ आत्मनिर्भर।
वही बात टेक्नोलॉजी, राइट। और हमारे पास एक और मेजर प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो बजट्स है और कैपेसिटीज टू जियोपॉलिटिकली फॉरवर्ड टेक फॉरवर्ड और नेशनल एजेंडा इज वीक। बजट हम देते नहीं, हमारा डिफेंस बजट है बहुत कम है। अगर हमें इस इलाके में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना है और एक रीजनल पावर बनना है और एक ग्लोबल पावर शक्ति बन के आना है, तो हमें डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ेगा। आप किसी बड़ा देश को देखिए, वो हमारे से कब तकरीबन 1.5 टाइम्स टू 2 टाइम्स डिफेंस के ऊपर खर्च करता है। पर हम डिफेंस के ऊपर हम इसीलिए खर्च नहीं कर रहे हैं, वो दो वजह है। एक तो हमारे पास वो क्यों, बिकॉज वी डोंट हैव द स्ट्रेटेजिक कल्चर, उसके ऊपर हम पैसा नहीं देते। दूसरा, हम पैसा भी दे देंगे, उसको खर्च करने का हमारे पास क्षमता नहीं है। ये मान के चलिए। क्यों नहीं है? ये रिफॉर्म्स की जरूरत है, सोच की जरूरत है, और जब तक ये नहीं होगा, ये पूरा इंटरनल इश्यूज हमें नीचे घसीटता जाएगा, राइट। हमारा एक और प्रॉब्लम है, हमारा दुविधा यह है, इंडिया हैज बीन ऑलवेज अ कॉन्टिनेंटल नेशन। क्योंकि तटवर्ती इलाकों से हमारा कोई खतरा नहीं था। मैंने बोल दिया, पिछले फॉर द पास्ट 4 to 5 centuries no one has attacked India from the coastline. All invasions into India have come from the continent, either through Myanmar area or the Gorkha wars, or from जितने मुगल वगैरह है, ये अफगानिस्तान के रूट से आए हैं। तो और वी हैव अ कॉन्टिनेंटल आउटलुक। बट कल के दिन अगर हमें बड़ा पावर बनना है, रीजनल पावर बनना है, तो हमारा इंडियन ओशन को कंट्रोल करने की जरूरत है। तो वी शुड बिकम अ मैरीटाइम पावर। और ये डिबेट है कैसे मैरीटाइम पावर और कॉन्टिनेंटल पावर का बैलेंस करना है। कई लोग सोचते हैं कि वी शुड ओनली डेवलप और मैरीटाइम इक्वेशंस एंड पावर। कई लोग सोचते हैं नहीं नहीं, हमें कॉन्टिनेंट के ऊपर ही ध्यान देना पड़ेगा। ये संतुलन की जरूरत है बिटवीन कॉन्टिनेंटल एंड मैरीटाइम। ये इट इज नॉट अ मैटर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस टू डिसाइड। ये हमारा जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, दे हैव टू टेक दिस कॉल। क्या वो ले पा रहे हैं? एक प्रश्न चिन्ह है, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, राइट। ये लास्ट 2-3 स्लाइड है, इसके बाद मैं क्वेश्चंस लूंगा। सवाल ये है कि क्या आर द आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया मॉडर्न इनफ टू डिफेंड द नेशन? सुरक्षा के लिए, हमारा देश का सुरक्षा के लिए आर द आर्म फोर्सेस गुड इनफ? आंसर यस। आप देखिए हमारा स्पेस, हमारा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, हमारा मिसाइल प्रोग्राम, हमारा शिप बिल्डिंग, हमारा गन टेक्नोलॉजी, एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी, तेजस बनाना शुरू कर दिया हमने। कम्युनिकेशन, जितना कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन इंडिया में हुआ और बहुत देशों में नहीं हुआ है। अगर आप ये सब देखोगे और हमारा आर्म फोर्सेस का जो हिस्ट्री देखोगे, क्योंकि एक्सेप्ट 1962 जहां हमें परास्त होना पड़ा अगेंस्ट चाइना, वो अलग वजह है, हर युद्ध हम जीत के आए हैं। अगर आप इस नजरिया से देखोगे, तो और आर्म फोर्सेस आर स्ट्रांग इनफ टू डिफेंड द नेशन। पर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, आर द इंडियन आर्म फोर्सेस मॉडर्न इनफ फॉर अ रीजनल पावर which is destined to be the third largest economy shortly? क्या हम उस तरफ पहुंच सकते हैं? नॉट येट। अनलेस वी फिल इन द मेजर कैपेसिटी गैप्स। मेजर कैपेसिटी गैप्स क्या है? हमारे पास पनडुब्बियां उतना नहीं है, हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर उतना नहीं है, हमारे पास नाव उतने नहीं है, राइट। हमारे पास एयरक्राफ्ट नहीं है, हमारे पास गन्स नहीं है, टैंक्स नहीं है। मेजर, इसमें काफी इजाफा चाहिए अगर हमें एक पावर बनना है तो, राइट। एंड attune ourselves to the oncoming storm of disruption in military affairs। ये disruption in military affairs क्या है? ये नए टेक्नोलॉजीज, एआई, साइबर, स्पेस टेक्नोलॉजी, इस सब में एक रेवोल्यूशन हो रहा है। और ये जो रेवोल्यूशन है, वो हमारा मिलिट्री अफेयर्स के ऊपर बाधा डाल रहा है। इट इज डिसरप्टिंग वर्ल्ड मिलिट्री अफेयर्स। मैं ये इसके बारे में
कल जब जनरल राज शुक्ला बात करेंगे हमारे साथ ऑन चाइनीज मिलिट्री पावर, मैं जिक्र करूंगा। इसीलिए मैं ये आज लिया क्योंकि देयर इज अ कनेक्ट बिटवीन दिस टॉपिक एंड और चाइना सीरीज। एंड व्हाट आर द इश्यूज विच प्रिवेंट अस? चाइना, जो चाइना जो है इतना बड़ा शक्ति है, इट इज डिक्लाइनिंग डेमोग्राफिकली, इट इज स्लगिश इकोनॉमी, इंटरनल टेंशन बहुत है, राइट? हालांकि बोला जाता है कि चाइना इज अ बिग पावर, बट इनके प्रॉब्लम ये है, और ये हमें एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी देता है। क्या हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरीके से इस्तेमाल करना है? अगर हमें एक बड़ा शक्ति उभर के आना है तो हमें ये चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और पाकिस्तान पाकिस्तान जो है आज के दिन इकोनॉमिकली डिफंक्ट है, राइट? ये हमें एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी देता है जिस तरीके से हमने बताया, क्योंकि पाकिस्तान अभी उभर के आने के लिए, अभी हमने पिछले हफ्ते 10 दिन में 8 बातचीत किया, 8 एपिसोड किया ऑन पाकिस्तान। उसमें बड़ा क्लियर निकला है कि पाकिस्तान विल नॉट रिकवर फॉर द नेक्स्ट 10 years एटलीस्ट। अगर वो आर्थिक स्थिति उनका सुधार नहीं सकता और वो उनका प्रॉब्लम ही रहेगा, अंदरूनी प्रॉब्लम, और चाइना का भी कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम्स हैं और वगैरह वगैरह, जो हम आगे बात करेंगे, तो हमें एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। क्या हम हमारा विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं? ये सवाल है, और इस सवाल का जवाब अगले 10-15 दिन में जब हम चाइना चैलेंज सीरीज करेंगे, बात करेंगे। क्यों चाइना चैलेंज? पाकिस्तान जो एक साइड शो है, उसके साथ हम मैं आपको सब लोगों को साफ बताना चाहता हूँ, अगर मैं वीडियो चलाता हूँ पाकिस्तान के ऊपर, थर्ड रेट वीडियो और थर्ड रेट सब्जेक्ट के ऊपर भी बहुत व्यूज आते हैं, पर जो हमारा मेन प्रतिद्वंदी है वो है चाइना, उसके ऊपर अगर हम आला दर्जे का व्यूज और आला दर्जे का प्रेजेंटेशन भी दूं तो हमें आधा व्यूज भी नहीं मिलते। क्या हम अपने सबसे बड़ा खतरा के ऊपर इतना हमारे पास ध्यान भी नहीं है? ये मेरे को समझ में नहीं आता, राइट? इसीलिए मैंने चाइना के ऊपर 16-17 टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन रखा। पाकिस्तान में सिर्फ 8-9 टॉपिक्स के साथ पाकिस्तान खत्म। अगर वो व्याख्या होता है तो हम बात करेंगे, राइट? और यही मेरा लास्ट पॉइंट था। जय हिंद। जहाँ तक प्रेजेंटेशन का सवाल है, मैं अभी जाके अपना आप लोगों का प्रश्न है उनके जवाब दूंगा, राइट? ओके। जवाहरलाल बंसल का है, व्हाई इंडिया इज केप्ट आउट ऑफ यूएनएससी फॉर द लास्ट 75 years। बात यह है यूएनएससी में, या 1 minute जवाहरलाल बिफोर दिस थिंग, माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू हु आर सीइंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू गना शॉट। आई एम गोइंग, जैसे मैंने प्रॉमिस किया आप लोगों को, आपके पास इंडिया के सबसे अच्छे स्ट्रेटेजिक विशेषज्ञ आके बात करेंगे, उनके साथ मैं बात करूंगा, उनके अंदर जो उनका जो व्हाटएवर दे हैव टू से, आई विल पुट इट अक्रॉस टू यू इन सिंपल वर्ड्स, बहुत सरल तरीके से। हिंदी में भी बात करेंगे और इंग्लिश में भी बात करेंगे। आपके दोस्तों को बुलाइए इस चैनल के ऊपर। मेरे क्या, इसीलिए मैंने ये चैनल शुरू किया क्योंकि मैं पहले बहुत चैनलों में जाता था, बात करता था, पर मेरे को ये महसूस हुआ कि इंडिया में ऐसे कोई चैनल नहीं है जिसके ऊपर हमारे लोगों को बड़ा क्लियर पता चले एक्चुअल क्या है, एक्चुअलिटी क्या है। इसीलिए मैं फैक्ट बेस्ड एनालिसिस के ऊपर आई इंसिस्ट। इसीलिए मैं अपने सारे गेस्ट्स को बोलता हूँ कि भाई आप अच्छे प्रेजेंटेशन दीजिए, एक पीपीटी दीजिए ताकि सब पढ़ सकते हैं। अगर आपके बाद जो बोल रहे हैं आपको समझ में नहीं आता तो एटलीस्ट दे कैन रीड द स्लाइड्स। अगर आप स्लाइड नहीं दे रहे हो तो मैं मुद्दे के ऊपर बात करूंगा। जैसे कल जनरल राज शुक्ला, उन्होंने बोला कि भाई मेरे पास स्लाइड नहीं है। मैंने कहा ठीक है, स्लाइड नहीं है तो कोई नहीं, आप मेरे को 5 मुद्दे दीजिए जिसके ऊपर बात करेंगे, और 5 मुद्दे के ऊपर सीरियसली बात करेंगे, राइट? तो ये है, राइट? इसीलिए कृपया हमारे चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कीजिए, ये जो बेल बटन है उसको दबाइए, और लाइक
कीजिए, क्योंकि जब तक आप ज़्यादा लाइक करोगे तो तभी ये ट्रैफिक भी गूगल ये और यूट्यूब वाले हमारे पास लेके आएंगे. ओके, क्वेश्चंस लेंगे अभी. Why is India kept out of UNSC for the last 75 years? It has been kept out not by design. अगर आप देखोगे तो जब यूएनएससी स्थापित हुआ था, वी वर ऑफर्ड अ सीट. एट दैट टाइम फॉर सम रीजन वी डिडंट टेक इट. उसके बाद for a long time we were not in favor of USA. So the USA didn't let us get into this UN security system. Right? Now China is against us. China is opposing our entry into the UNSC. That is the challenge. इसीलिए मैंने वो नियर चैलेंज में के दायरे में आपको दिखाया. Right? Why do you think that is the most consequential? I have said that relationship. Right? Let me show you that slide again. Have a look. This is the prime driver of our security. And जो मैंने last में लिखा point, most consequential. Why? China. And how we handle China and how we push China out will give us the way into UNSC. And I'll discuss this. ये जो आपने जो सवाल उठाया है वो बहुत सीरियस सवाल है और इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे डाउन द लाइन. थैंक यू. ओके, Pradeep, India-US ties getting better by day. Is Russia-India relation something to be worried about? देखिए ये बात सब बोलते हैं. How can we manage the ties between India and Russia on one hand, and how can you balance it out with US? So far we have done well. अगर आप देखोगे तो we have the experience of non-alignment. The problem I foresee is not balancing India-Russia and India-US ties. The problem will come in balancing India-Russia ties and India-China ties and Russia-China ties. That triangle is going to get more complicated. And we'll have to play it by the ear, because जिस तरीके से रशिया और चाइना का जो पार्टनरशिप है, it has become some special partnership with no secrets, no holds barred partnership. राइट. एंड दिन ब दिन जैसे ये यूक्रेन वॉर बढ़ता जा रहा है इन दिस थिंग, दैट पार्टनरशिप इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर. व्हेन विल द इंडिया रशिया पार्टनरशिप स्टार्ट वर्किंग अगेंस्ट इंडिया फॉर चाइना इज द प्रॉब्लम. हाउ कैन वी बैलेंस दैट इज द बिगर प्रॉब्लम फॉर मी, नॉट इंडिया यूएस. India-US partnership is pretty stable, right? Again, I'll repeat. The India-US partnership is pretty stable. The India-Russia partnership is reasonably stable. The problem for India is the increasing bonhomie between Russia and China. That bonhomie is becoming so much that at some point of time, it will start threatening the India-Russia partnership. Already Russia has indicated that we should start mending our fences with China. That means we should start making compromises. China is also making similar overtures to us. But till such time the border issue is alive, this equation will not change. And at some point of time, we might be forced to review our equation with Russia. Okay. Right. Thanks a lot, Ganeshwar. Thanks a lot. We'll make better narrations, okay, in future. Wing Commander Rajinder Singh. Thanks, Wing Commander. I'm honored that you're here. Is Pakistan a real threat for India, or is it hyped across an artificial border? Look, Pakistan was a threat for India long back. I don't think it's a threat for us anymore. It's an irritant at best. India has learned to look over Pakistan. एंड जैसे मैंने ये अपने पाकिस्तान सीरीज में 8 एपिसोड में हमने स्थापित किया, पाकिस्तान डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू हर्ट अस. पाकिस्तान हैज द कैपेसिटी टू इरिटेट अस. वी शुड बी एबल टू हैंडल दिस इरिटेशन सेंसिबली एंड लेट पाकिस्तान स्ट्यू इन इट्स ओन जूसेस. जो भी पाकिस्तान में हो, होने दो उनको खुद भुगतने दो उनका जो प्रॉब्लम है. अपने आप ये प्रॉब्लम सुलझ जाएगा.
Jawaharlal Bansal, I like it. We lack technology. I agree with you. I've explained it. We need a टू पार्टी सिस्टम. देखिए, ये भी मैं मानता हूँ टू पार्टी सिस्टम होना चाहिए जस्ट लाइक इन यूएसए. बट हमारा जो देश है, वेयर लैंग्वेज चेंज, भाषा जो है ना, हर 20 किलोमीटर चेंज हो जाता है. राइट, इतने स्टेट हैं, इतने इनके सबके विचार हैं, तो हमारे देश में कभी टू पार्टी सिस्टम आ नहीं सकता. 75 साल में नहीं आया, तो अभी क्या आएगा? हाँ, ये जरूर है कि 2-3 बड़े पार्टी होंगे और बहुत अनेक छोटे पार्टी होंगे, और इनका कोalition बनता जाएगा और बिगड़ता जाएगा, और हमारा राजनीति ऐसे ही चलेगा. पर गजब की बात यह है कि देखिए, मैं अपना अनुभव से बताता हूँ. मैंने इलेक्शन पंजाब में कराया, जेएनके में कराया, असम में कराया, और बाकी जगहों में भी कराया. और डेमोक्रेसी फंक्शंस, और हमारा जो लोग हैं, इनके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है. हम सोचते हैं कि हम बिक जाते हैं और खरीदा जाता है हमारा वोट वगैरह वगैरह, एक हद तक. मेरा पूरा ये विश्वास है कि हमारा जो लोग, अगर कोई सत्ता में काम नहीं कर रहा है, उसको उठा के निकाल के फेंक देंगे. ये हमारा हिस्ट्री भी रहा है. सो आई हैव फेथ इन माय डेमोक्रेसी. आई हैव फेथ इन ऑल ऑफ अस. वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम डेमोक्रेसी. ओके. एंड अगर आप देखेंगे तो इस पूरा इलाके में वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी. हमारे चारों तरफ तो डेमोक्रेसी का नाम ही नहीं है. जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश स्थिरता आ गया, पर म्यांमार, ये सब तो प्रॉब्लम्स में है. अगर और भी दूर देखोगे तो मिडिल ईस्ट में तो है ही नहीं डेमोक्रेसी बिल्कुल. और ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, अभी मलेशिया में देखिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है. इंडोनेशिया में भी लड़खड़ाते रहते हैं ये. हमारा डेमोक्रेसी फिर भी इज वेरी स्ट्रांग. सो लेट्स हैव कॉन्फिडेंस. ओके. Ritik Dochak, first time I think you are coming. So is Devlal Bansal. I would request all of you to keep coming back for live shows. I enjoy talking to all of you. यूएसए का डिफेंस बजट चाइना से 3 to 4 times है, सिमिलर टू चाइना एंड इंडिया. बट इंडिया चाइना से उस यूएस तरह से उस तरह से टक्कर नहीं ले रहा है जैसे चाइना यूएसए से ले रहा है इन एवरी डोमेन. आई हैव अ डिफरेंट व्यू ऑन दिस. देखिए, व्हाट वाज द बजट ऑफ तालिबान जिसने यूएसए के साथ टक्कर लिया. तो टक्कर लेना है, ये बजट की बात नहीं है, या डिफेंस की बात नहीं है, एक्सपेंडिचर की बात नहीं है, या आपका जीडीपी की बात नहीं है. पाकिस्तान के पास क्या है, वो हमारे से टक्कर लेता है, वो बात नहीं है. बात यह है कि हमारा क्या रिलेशनशिप है. अगर आप इंडिया चाइना रिलेशनशिप देखेंगे तो तकरीबन 2003 तक हमारा प्रॉब्लम था. 2003 तक अगर आपको पता नहीं तो हमने तिब्बत को भी वी डिडंट रिकॉग्नाइज. पर 2099 2000 उस टाइम में हमने तय कर लिया, चाइना एंड इंडिया ने, कि भाई हम अपना ये बॉर्डर के इसको अलग रखेंगे. विल हैव अ एमओयू एंड विल बोथ प्रोग्रेस टुगेदर. ये हमारा नेशनल पॉलिसी था. वाजपेयी साहब ने साइन किया है ये एमओयू 2003 का, फ्रेंडशिप ट्रीटी, अंडरस्टैंडिंग जो भी है. और उसके साथ वी हैव वी हैव प्रोग्रेस टुगेदर. चाइना हैज टेकन अ डिफरेंट डायरेक्शन, वी हैव टेकन अ डिफरेंट डायरेक्शन. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. उनका रास्ता अलग और उनका गति अलग, हमारा गति अलग, हमारा रास्ता अलग. हमारा डेमोक्रेटिक, उनका ऑटोक्रेटिक. चाइना इंडिया का जो प्रॉब्लम्स, रियल प्रॉब्लम्स, दोबारा 2020 में शुरू हो. और 2020 से अगर आप अभी तक देखोगे, हम टक्कर ले ही रहे हैं. आप मेरे को एक देश दिखाइए जिसने चाइना के फौज को धकेल दिया बाहर, जिसने इतने एप्स बंद किया, जितने इतने इकोनॉमिक इश्यूज खड़ा किया अगेंस्ट चाइना. और कोई देश नहीं है जिसने हुआवी और जेड टीवी को बैन किया है, सिर्फ इंडिया ने किया है. और टिकटॉक, आज तक अमेरिका ने भी नहीं किया टिकटॉक को बंद, हमने बंद कर दिया. तो ऐसी बात नहीं कि दैट वी हैव नॉट टेकन स्टेप्स, वी हैव टेकन स्टेप्स.
राइट, वी हैव नॉट टेकन स्टूपिड स्टेप्स जैसे पाकिस्तान लेता है, इधर मार दो उधर काट दो ये वो, और जब भी उन्होंने ट्राई किया वी हैव उनको बाहर धकेल दिया। अभी हाल ही में यांगजी में इनको बाहर धकेल दिया। इसका इतना बुरा असर हुआ चाइना में, आप सोच नहीं सकते हो अगर आप चाइनीज आर्टिकल्स पढ़ोगे तो India does not show, sorry, India does not show its actions in a high profile manner, but हम firm deal कर रहे हैं। आप देखिए बाकी सारे कंट्रीज ने बीआरए में हिस्सा लिया, बीआरए में शरीक हो गए, हमने बोला नहीं। तो मैं और भी उदाहरण दे सकता हूं। तो कभी मत सोचिए कि हम चाइना के साथ सख्त डील नहीं कर रहे हैं, हम बहुत सख्त डील कर रहे हैं। श्रीलंका में देखिए कैसे हमने डील किया। आज के दिन श्रीलंका में चाइना का बोलबाला है ही नहीं। वो 2 साल पहले वो हमें देखते नहीं थे, आजकल वो पलट गया। तो हमारा जो तरीका अलग है पर इफेक्ट काफी है। ओके, विश्वनाथन का है, सर चाइना बीइंग आवर प्राइमरी एडवर्सरी, हाउ लॉन्ग विल वी continue to enjoy the present high return on its investment globally and trade? Look, Vishwanathan, this is going down. The BRI is not giving them any returns. In fact, it's negative returns. Their money is stuck. They've had to evergreen loans to get, continue with their loans. Otherwise, they would be default. Once it goes into default, they don't get their money back. That's what happened in Pakistan. There are no returns on investment for Chinese external investments. So China is in a problem. There's a serious economic problem. I will discuss this during the China series. This question is very relevant because I can't tell this in the next 5 minutes. I'll take a full session or maybe 2 sessions to explain China's economy to all of you. And I'll do it in a different manner. I'll give my side of the geoeconomics and I'll get a good economist who's been to China to explain the domestic economy of China. ये दोनों के बाद then you ask me this question back, right? And I'll wait for it. Okay, whether research is cheaper than buying technology, any day. I'm in research. The things I'm going to give to India will cost, let me tell you, 1/100th of what we had to buy. अगर हमें 1 रुपये से हमारा जो आईआईटी के अंदर जो रिसर्च हो रहा है उसको हमें खरीदना है, बाहर जाकर हमें 100 रुपए खरीदना पड़ेगा। I'll give you a small example. I was dealing with the M777 acquisition from USA. So the US people came and said, we will cost you this much. Since you didn't take the gun at that point of time, the cost will go up. और अभी आपको हमें इतना पैसा देना पड़ेगा। तो मैंने बोला नहीं दूंगा, मैं एक नया पैसा नहीं दूंगा आपको। और जो पुराना कॉस्ट है वो जो 5 साल 6 साल पहले आपने कॉस्ट दिया उसी कॉस्ट में आपसे लूंगा। वो हैरान हो गया। मैंने कहा भाई देखो, अगर आप नहीं गन दोगे तो मैं अपना गन बना रहा हूँ। मैंने उसको एक वीडियो दिखाया हमारा धनुष का फायरिंग का उस दिन। मैंने कहा ये है धनुष का गन, ये ठीक है, हम धीरे होंगे, 1 साल नहीं तो 2 साल में बनाएंगे, 2 साल नहीं तो 4 साल में बनाएंगे, पर ये गन फायर कर रहा है, सही चल रहा है, 5 साल के बाद मेरे पास गन होगा। अगर आप बेचना चाहते हो तो बेचो उस पुराने रेट में, अगर नहीं बेचना चाहते हो तो मत बेचो। हम बातचीत करते रहेंगे, चाय पीते रहेंगे, 5 साल के बाद मैं अपना गन को खरीद लूंगा। चट से वो पुराने रेट पे हमें गन बेच दिया। So homegrown technology gives you additional levers. Firstly, it's cheaper and it gives you levers to bargain. It drives costs down. It works both. Okay, Jack Sparrow. Okay, he says, sir, USA has a department which oversees only the depiction of USA power in movies. Do we have such department in India? Unfortunately, no, Jack. And I have been crying for this. We have the best information and broadcasting ministry. They can do it. The Doordarshan has the best footprint
It reaches all villages. Or Bollywood has the best reach. It has impact in even Pakistan. Even in Pakistan today, Bollywood movies are released on the same day when they are released in Bombay, and yet we don't make use of it. This is a national deficiency. We have to resolve it. Okay. Okay. Uh, General Sir Tarun says, problem is that we seek weak, internally divided. We are weak, internally divided. Ex-service personnel from forces, diplomats, and all other persons helpful must sit together and make plans regularly, and government should implement. यही तो हमारा कोशिश है. That is why, Tarun, I'm speaking to all of you. देखो यार, let me tell you one thing. Why should I speak? Why, have you seen anywhere a lieutenant general coming and running a YouTube channel and talking? Why do I do it? I do it because you people should know what's happening. When you people should know what's happening, why do I want more viewership? I need more viewership, more people see. The more we tell, the more I communicate, then you can tell your our government in some form or the other to do the right thing for the nation. As our nation is growing in power, we need to do things differently, not the same thing. Doing the same thing again and again and again is failure. Yeah, Tarun, China is very important. Please talk regularly on it. Thanks. Look, I'll show you. मैं बता रहा हूँ. I'll show you that list. Yeah, China challenge. It's already started, but I'm not getting response. These are the people. I can go through each one of them, and each one of them is fantastic. चुन चुन के मैं लेके आया हूँ एक्सपर्ट्स, और मैं रोज बात करता हूँ उनसे कि क्या बात करना है आपके साथ, और वो मेरे सलाह मशवरा करके वी पुट अक्रॉस थिंग्स टू यू, and I don't get response. What do I do? If I don't get response, and just 5-10 people see, or 30-40 people see this, well, I can do what I have to do. मैं तो लगा रहूंगा, like लगे रहो मुन्ना भाई. कोशिश कीजिए, हमें भी हेल्प कीजिए, सब्सक्राइब, और लोग आके ये वीडियोस देखिए, इन वीडियोस को फैलाइए. मैं अपना ट्विटर हैंडल दूंगा, मैं ट्विटर में आई पुट इट आउट. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज रीट्वीट इट एंड सेंड इट टू ऑल योर फ्रेंड्स. Otherwise, how will people know what China is up to? Okay, Tushar, how can India grow its military defense complex in the next decade? It is the negative import list the best way. Tushar, just hold. I'm going to do a series after China on defense, uh, manufacturing, acquisition, export, import, everything, with someone who's handled defense well. I have a lot of experience in all this business, but I'll get two, three more people and we'll discuss this. I'll answer all your questions then. Okay? Yeah, bring some IWT Indian experts. What is IWT? That is something which experts to discuss pros and cons of exiting, and I was 11 years old during. Yeah, we are on the same age. I agree with you. What is IWT? If you could tell me, I'm not right. I'll answer this question. Lalit, how are you? All great points. Yeah, great. How's New York? Take care, and take care of yourself and everyone. Right? And if you have any issues which you want me to project to an international audience, please tell. I cannot go completely English, क्योंकि हमारे पास बहुत लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो इंग्लिश नहीं जानते हैं, और मैं उनके साथ मैं हिंदी में ही बात करना चाहता हूँ. ओके, you're absolutely right. Chinese FDI is abroad is well known to lose money. Yes, they're losing money tremendously, right? And I will highlight it during talks, right? Okay, Bharat Vichar, sir.
is there a problem in India when it comes to understanding the concept of defense economics? Light tank is going to be delayed. Yes, I agree. We have no concept. Absolutely. The concept of a light tank I propagated 3 years back, and I told everyone a roadmap. आज तक that has not got off paper. आज तक तो टैंक आ जाता अगर वो मेरे बात सुनते तो. That's a problem, right? Okay. Yeah, please continue till your subscription increases. Look, I will not give up. देखिए, मैं ढीठ आदमी हूँ, मैं फौजी हूँ, राइट? मैं मेरा मेरे सब्सक्रिप्शन इंक्रीज करने का मतलब एक ही है. I don't need personal thing. I want more people to understand what I'm talking. जब तक हमारे लोगों को समझ में नहीं आता जो मैं बात कर रहा हूँ, जागरूकता कैसे होगा? Oh, Indus Water Treaty. Seen. Now let me take that question back. Yeah, देखिए जो Indus Water Treaty, I can talk. In fact, I've done a lot of research on the Indus Water Treaty and the Pakistan this thing. If you go to Gunner Shot, I have written 2 researched articles on Pakistan water problem, and I had done a great research on Indus Water Treaty also. So whatever questions you have on Indus Water Treaty, ask. In fact, जो Pakistan के जो series में, we did touch upon this Indus Water Treaty. Since we were dealing with Pakistan, we didn't go into Indus Water Treaty more. But let me tell you, उसका एक छोटा सा क्लिप मेरे ख्याल में आज आउट किया या मैं कल आउट करूंगा. Indus Water Treaty is something which we have not utilized. Problem is not with Pakistan. The problem is with us. It is with us, our politics and our incapability to operationalize it fully. आपको पता होना चाहिए कि जो northern rivers हैं, I can give you a whole, I can talk on the Indus Water Treaty for the next 3 hours. The northern rivers of Indus, Chenab, and Jhelum, we are supposed to get 7% of water from each. We have not got. We have never got for the past 75 years. The southern rivers, Ravi, Satluj, and Chenab, sorry, Ravi, Satluj, and Bias, its waters we have not completely taken. Despite the fact these waters go right down to Barmer and Bikaner through the Indira Gandhi Canal. We need to do inter-basin transfer from the Indus Basin to the Ganges Basin through the Satluj Yamuna link, but that's cut in politics. Isliye, it's something which I know quite a bit. I'll talk once sometime. Okay. Don't give up. I'll not give up. Basically, don't worry. General Shankar, you're writing history. Please don't stop. Yeah, I will not stop. I will not stop. That is a guarantee. But I want more people. That's the thing. I need more people to know about what India is. That's it. Yeah. May I request you to continue a peek into everyday China? It is immensely helpful to defense aspirants like me, and I'm sure to others as well. Yeah, we are. See, the thing is, since I started this China series, I am going to now include certain aspects of peek into everyday China into that. And once this finishes from the middle, by the middle of May, I'll resume old peek into everyday China. I will do that, right? Because I wanted this focus. That's why I got this. Yeah. Congratulations, sir, for. Oh, I didn't know that 100K views are complete. Thank you. Thanks a lot. Right. May I request to continue the. Yeah, I will do this. That's it. That is. Thank you for your videos. I will give. My aim is simple. And my motivation is simple. All of you should know it. I have no commitment. Okay, my children are well settled. Everything. I have whatever knowledge I have. It is payback time. This country gave me everything. I should give it back to my country. My people made me what I am. I should give it back to them. Okay, I don't need anything. And as I'm getting old, I don't need money also. Nothing.
I need people to listen to what it is so that you people of the next generation can take the torch forward. If I get money, I'll give it. Actually, I've not said so far, but I'm going to tell today. I'll educate girl children. I'm already educating girl children. Whatever money I get out of writing and whoever gives me, I buy a computer, hand, when COVID was there, I gave 4 5 girls who couldn't afford to go to school those days, uh, tablets, small tablets, so that they could do lessons at home. I pay their school fees. Uh, the girl children who cannot afford education, I pay for them. So if Kishore Kunal, thanks a lot. So your teaching will people will understand in future. Do your teaching. I have started learning about Indo-China. Yeah, I'll not stop. Don't worry. Right, Kunal, and all this money which I get will get contributed after tax deduction, and all for them. I, and that is my happiness. Right. Thanks a lot. I think we've finished all questions, everything. Um, Tomorrow we are getting General Raj Shukla. Just for your up sabke liye, General Raj Shukla is the member of the UPSC, right? He's been the GOCNC of our track. I spoke to him. He's a fantastic speaker, and he has given me some tremendous subjects which he is going to speak tomorrow. Very important to understand China. So he's coming as a special thing. I want a lot of response. Please tell all your friends to come and listen to him what he says. He's really good. He's a gunner and he's been my junior. I've known him from a long time. So we'll meet tomorrow evening. Till then, good evening, Jai Hind, and have a great evening. Thank you.